Hello friends, I welcome you all for the second video of chapter 1 of Organization of Commerce and Management, that is Nature and Significance of Management. Friends, in the last video we had discussed about the introduction of this chapter and we had studied definitions which were a part of management. So I am hopeful that you have gone through the entire introduction part as well as the definitions also, and you have remembered all the definitions as of now. So let us move to the today's content that we are going to cover up, and that is nature of management. Friends, this question is basically asked in the examination generally for 3 marks. Now what you need to understand in these kind of questions where 3 marks questions are there is, first of all you have to write all the answers of OC or of any other theoretical subject in points only. If you write the answer in paragraphs, it becomes cumbersome for the paper reader and he may end up cutting your marks without any sorts of a fault of yours. So you need to be very careful in the first attempt that you need to definitely write all the points, all your answers in points. So the second question is that in 3 marks question how much you should write. Friends, if there are head points given and also the content is also there in the textbook, so you are definitely supposed to write at least 6 points in every answer of questions that are asked for 3 marks. So now you have to write 6 head points and the content is also there, so you will have to basically explain also all the 6 head points minimum that you have written. So in this particular answer, that is of the question of nature of management, what we will first of all do is we will understand whatever is given in the textbook first of all, then I will tell you how much you will have to write in your examination, and at the end I will also teach you how you can remember all the head points also from this question. So without wasting much of our time, let us move on to the first question, that is nature of management. Friends, first of all let me tell you one thing, that this question of nature of management can also be asked as characteristics of management. So this question is not only the answer, this answer is not only the answer of the question of nature of management, but it is also the answer of characteristics of management. So let's go through this nature or characteristics. The first point is universal process. Friends, what is the meaning of first of all characteristics? Characteristics मतलब क्या? मैनेजमेंट क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं. पहली चीज क्या लिखी है उन्होंने? यूनिवर्सल प्रोसेस. यूनिवर्सल मतलब क्या? प्रेजेंट एवरीवेयर. तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. इट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जहाँ पे भी लोग ग्रुप में काम करते हैं वहां पे क्या चाहिए? मैनेजमेंट. Management is not only required in industries, but it can also be applied in various social and religious fields and activities like agriculture, army, education, etc. मतलब क्या? मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चाहिए, इंडस्ट्री में तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा बट ऑल्सो इट हैज टू बी अप्लाइड इन वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स एंड ऑल्सो एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन. क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारे आदमी होते हैं, तो ये सभी जगह पे मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है लोगों का. सोशल एक्टिविटीज में आप देखो, रिलीजियस एक्टिविटीज में देखो, सभी जगह पे इंसान होते हैं तो वहां पे मैनेजमेंट चाहिए. मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिट्स. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. मतलब क्या? गोल को प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटी है. कौन सी एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है? मैनेजमेंट के बारे में. फ्रेंड्स, सबसे पहला यहाँ पे एक सेंटेंस मस्त अच्छा लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट. अटेनमेंट मतलब क्या? हासिल कुछ मैनेजमेंट ऐसी चीज नहीं है कि आप कुछ अटेन कर रहे हो. अटेन क्या कर रहे हो आप? ऑब्जेक्टिव्स को. और वो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए मैनेजमेंट क्या है? एक जरिया है, एक रास्ता है, एक टूल है. मतलब मैनेजमेंट इज अ टूल एंड इट इज नॉट द अटेनमेंट. आप मैनेजमेंट को अटेन नहीं कर रहे हो. मैनेजमेंट तो आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो? किस तरह से यूज कर रहे हो? एक टूल की तरह यूज कर रहे हो. क्यों टूल की तरह यूज कर रहे हो? क्योंकि आपको चाहिए क्या? आपको अटेन क्या करना है? आपको अटेन मैनेजमेंट नहीं करना है, आपको अटेन करने हैं ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए मैनेजमेंट क्या है? एक जरिया, एक्टिविटी है. गोल ओरिएंटेड, गोल को प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी है ये. एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इन अ कॉम्पिटेंट एंड एन इकोनॉमिकल वे. मतलब अच्छी तरह से और किफायती तरीके से. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे खर्च होने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए. हमने कल ही पढ़ा था, लेस टाइम लेस कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिकल वे में अचीव होनी चाहिए. थर्ड इज ग्रुप एक्टिविटी. मतलब क्या? जहां पे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं वहां पे
मैनेजमेंट चाहिए। पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या, 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति जहां पे हैं वहां पे मैनेजमेंट होने वाला है, और वो जरूरी है जहां पे 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव तो ही हो पाएंगे अगर मैनेजमेंट बराबर करोगे तो। फोर्थ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या, ये प्रोसेस मैनेजमेंट की क्या होती रहेगी? कंटिन्यूअस ही चलती रहेगी। आप पूछोगे सर मान लो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए तो मैनेजमेंट बंद कर देंगे ना? अरे यार, तुम्हारे जिंदगी में कभी भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि एक बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए तो तुमने जिंदगी में कुछ नया सोचोगे तुम। जैसे कि बच्चे, जब हम बचपन में थे तो बचपन में क्या सोचते थे? पहले साइकिल चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब साइकिल मिल गई तो अब क्या चाहिए? बाइक चाहिए। नया ऑब्जेक्टिव है तो फिर से मेहनत करेंगे। फिर बाइक मिल गई, अब कार चाहिए, फिर से मेहनत करेंगे। फिर आगे जिंदगी में बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। मतलब हमारी जैसे ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होने वाली, मैनेजमेंट भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। देखो आगे पढ़ते हैं। वंस बिगन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्यों स्टॉप नहीं होता? न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट भी अपने जैसा ही है, टारगेट अचीव करने, एक टारगेट खत्म हो गया, दूसरा टारगेट सेट कर दिया। तो मतलब क्या, ये जो चक्रव्यूह है, किसका चक्रव्यूह? एक बार ऑब्जेक्टिव्स नक्की करने के, फिर उसको हासिल करने के, और फिर से नए ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में, ये कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा? चलता ही रहेगा। समझ में आता है? नेक्स्ट इज ह्यूमन प्रोसेस। मतलब इंसान सबसे बेस है। ह्यूमन बींग्स के लिए करने वाली प्रोसेस है ये क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। मतलब इंसान के बिना ये सब कुछ, मतलब किसी चीज के लिए कोई मतलब ही नहीं है। मैन नहीं होगा तो ये क्यों करोगे तुम सब? इंसान की संतुष्टि के लिए ही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। यस, मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। करता भी कौन है? इंसान। किसके लिए करता है? इंसान के लिए। मैन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, दस इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस विच इज डन बाय एंड फॉर द मैन। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस क्या है? इंसान। क्यों डिसीजन? मतलब निर्णय लेने के लिए कौन होता है? मैनेजमेंट। डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है? निर्णय लेना। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजंस कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग द बिजनेस। और ये भी देखा था कि डिसीजन लेने के अलावा कोई काम नहीं हो सकता, और डिसीजन लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ डिसीजन लेके सो नहीं जाना है, आपको देखना है कि बराबर इंप्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यू हैव टू प्रोसीड टू इंप्लीमेंट इट। दस डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, 6 पॉइंट हमने पढ़े। लास्ट पॉइंट है ना, ये थोड़ा अजीबोगरीब पॉइंट है। आपको लगेगा सर ये अजीबोगरीब है, कोई अजीबोगरीब नहीं है पॉइंट। देखते हैं क्या है पॉइंट। क्या कहता है? साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। आप बोलोगे सर ये कॉमर्स में मैनेजमेंट आता है, ये क्या साइंस और आर्ट और प्रोफेशन लेके आया है ये सब? अरे फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे। चलो देखो क्यों साइंस बोल रहे हैं, क्यों आर्ट बोल रहे हैं, क्यों प्रोफेशन बोल रहे हैं। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब साइंस की तरह मैनेजमेंट के भी क्या है? रूल्स है। रूल्स मतलब नियम है, और प्रिंसिपल्स है मतलब क्या है? सिद्धांत है। साइंस सभी चीजों को रूल्स और प्रिंसिपल्स के बिना पे करता है। वैसे ही मैनेजमेंट भी कैसा है? साइंस के जैसा ही है, रूल्स और प्रिंसिपल्स के बल पर ही काम करता है। हेंस मेनी राइटर्स कंसीडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ठीक है, इस तरह साइंस हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, इनसाइट। ये सब कला चाहिए तुमको। क्यों? काम निकलवाना है तो कला तो चाहिए। तो कला का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इंग्लिश में कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, आर्ट बोलते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। कला है ये। क्या कला है? काम निकलवाने की कला है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसके नियम है, इसके सिद्धांत है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये कला है। Management of modern business is handed over to a trained and expert people. In recent times, managers have also adopted professionalism like lawyers, doctors, chartered accountants. Thus, it is clear that management is a profession too. अभी फ्रेंड्स आप बोलोगे प्रोफेशन कैसे? अरे प्रोफेशनलिज्म मैनेजमेंट ने भी डेवलप की है। कैसे मैनेजर्स ने डेवलप की है प्रोफेशनलिज्म? जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने अपने फील्ड में क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। मतलब अपना काम एकदम परफेक्टली प्रोफेशनल तरीके से एकदम ढंग से करते हैं। इस तरह से मैनेजर्स भी कैसे हैं आज के ज़माने में? अपना काम क्या प्रोफेशनल वे में करते हैं। जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकल के आते हैं, वैसे मैनेजर्स भी कहाँ से निकल के आते हैं? IIM से, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी MBA की इंस्टीट्यूशन से निकल के आते हैं। तो उनमें भी कौन सा एक ट्रेट रहता है? प्रोफेशनलिज्म का ट्रेट रहता ही है।
thus it is clear that management is a profession too। समझ में आता है? साइंस क्यों है? क्योंकि उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स है। आर्ट क्यों है? काम निकलवाने की कला है। और प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि लॉयर, सीए, डॉक्टर्स के तरह ये भी एक प्रोफेशन बन के उभरा है। समझ में आता है इतना? अब आप पूछोगे सर ये 7 पॉइंट समझ में आ गए, अभी लिखना कितना? इतना सारा लिखेंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, इतना सारा नहीं लिखना है। कितना लिखना है? ये पीडीएफ है फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए ही बनाई है। ये पीडीएफ आप ध्यान से पहले देख लो। और फ्रेंड्स ऐसा मत सोचना ये पीडीएफ में अभी अभी लिखना है आपके पास। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये पीडीएफ पूरी डाल दी है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में से ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और ये पीडीएफ डाउनलोड करके मैंने जितना भी इधर लिखा है, जैसे ये हेड पॉइंट है, फिर ये कंटेंट है, आपको सब कुछ इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिख देना है। समझ में आता है? ये लिखना पड़ेगा आपको। आप डाउनलोड कर सकते हो कहां से? डिस्क्रिप्शन में से। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये इंट्रोडक्शन अगर आपको ये डेफिनेशंस फ्रेंड्स आती है तो ये आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि किसी ने इंट्रोडक्शन लिखा होगा तो 3 मार्क में से आपको 3 मार्क्स मिलने के हाई चांसेस है, अगर आपने कंटेंट बराबर लिखा है तो। ठीक है, मान लो आपको तीनों डेफिनेशन आती है, 5 मार्क में इस चैप्टर में से कुछ मान लो आ गया, तो आप क्या करोगे? आप वो तीनों डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, तो आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड हो गया। किसी भी पेपर चेकर को लगेगा बच्चे को बिंदास सब कुछ जबरदस्त आता है, इसको उसको डेफिनेटली मार्क्स मिलते ही हैं। आगे पढ़ते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एज फॉलोज। पहला यूनिवर्सल प्रोसेस, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ लिखा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एकदम एडिक्वेट, एकदम प्रॉपर है। इतना आप लिखोगे आपको डेफिनेटली प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे ही। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो फ्रेंड्स, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसमें भी मैंने बराबर तरीके से लिखा है। ये यहाँ पे आप पढ़ो। सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस में क्या लिखा है? यूनिवर्सल रिक्वायर्ड, जहाँ पे people are working in group for accomplishment of objectives like industries, and it can be applied in social religious fields and also in army, agriculture, in education etc। फिर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी में क्या अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स कंपिटेंट और इकोनॉमिकल वे में मैनेजमेंट क्या है, जरूरी है। क्यों? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप से क्या याद आना चाहिए आपको? 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति। जहां पे भी 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप एक्टिविटी। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है? कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको याद रखना है कि जिंदगी में कभी भी इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। इसी तरह से एक बार आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो फिर से आप क्या करोगे? अचीव करके रीडिफाइन करोगे। मतलब डिफाइन करोगे, अचीव करोगे, रीडिफाइन करोगे, डिफाइन करोगे, अचीव करोगे, रीडिफाइन करोगे, डिफाइन करोगे, अचीव करोगे, रीडिफाइन करोगे। मतलब ये कंटिन्यूअसली, ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, इंसान तो चाहिए ही। मतलब ये मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन प्रोसेस। इसमें ह्यूमन में क्या याद आना चाहिए? मैन। मैन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, अदर एक्टिविटीज आर यूजलेस विदाउट मैन, देयरफॉर ह्यूमन प्रोसेस है मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आता है। नेक्स्ट डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन में क्या याद आना चाहिए? एक तो डिसीजन लेना और फिर डिसीजन लेके उसको देखना कि अमल हो रहा है कि नहीं। एक तो डिसीजन लेना, मैनेजमेंट को डिसीजन कंटिन्यूअसली लेना है, और दूसरा डिसीजन लेने के बाद मैनेजमेंट को चेक करना है कि इंप्लीमेंट भी बराबर हुआ कि नहीं। इसलिए क्या है वो डिसीजन प्रोसेस है। समझ में आता है। और लास्ट इज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि उसके खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। ठीक है, आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। समझ में आता है इतना। फिर प्रोफेशनलिज्म क्यों है? क्योंकि डॉक्टर, सीए, लॉयर्स की तरह मैनेजमेंट में भी क्या डेवलप किया है आज की तरफ, आज के जमाने में? प्रोफेशनलिज्म, मतलब काम एकदम प्रॉपर करने की पद्धति। तो मैनेजमेंट सिर्फ साइंस नहीं है, सिर्फ आर्ट नहीं है, सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, वो क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स और उसके अंदर का कंटेंट आप लिख कर याद भी रख लेना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये लिख भी लेंगे, याद भी रख लेंगे, लेकिन हेड पॉइंट्स याद कैसे रहेंगे? हेड पॉइंट्स याद रखने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है, लेकिन उससे पहले लेट अस रिवाइज। अभी तक जितना किया है उतना रिवाइज करके फिर मैं आपको याद रखवा दूंगा। पहले वीडियो में हमने फ्रेंड्स पहले चर्चा की थी 11th-12th में क्या डिफरेंस है, आपको पता चला कि मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंसान को समझ में आ गया सब कुछ खुद नहीं कर सकता। मुकेश अंबानी को भी सब कुछ अगर करना है तो काम उसका है, उसको दूसरे लोगों से करवाना पड़ेगा, और दूसरे लोगों से अपना काम करवाना, उसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। जब बिजनेस छोटे होते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती है छोटी छोटी, वहाँ पे ओनर खुद अपना काम करता है। लेकिन आज के ज़माने में हमको पता है जैसे साइज ऑफ बिजनेस हैव इंक्रीज्ड, दूसरे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉइज। मतलब ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपर्ट्स। और वो एक्सपर्ट्स कौन है? मैनेजर्स। तो मैनेजर्स क्या करेंगे? मैनेजमेंट। क्यों करेंगे? डिसीजन लेना जिंदगी में, इसके लिए। अच्छा, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले डेफिनेशन पढ़ी कुंट्स और डोनेल की, क्या थी डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू
अदर्स। फिर दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी लिविंगस्टन की, उसने क्या बोला था, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। इसने किस पे फोकस किया था, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना कैसे, मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट और एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज से। और लास्ट डेफिनेशन कौन सी थी, जॉर्ज आर टेरी की, जिसमें फोकस किया 6 एम्स के ऊपर। मैंने आपको ये भी याद रखवाया था कि 6 एम कैसे याद रहेंगे, और इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और आज हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कितने मार्क्स से पूछा था, 3 मार्क्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अगर ऐसे पूछूं कि आपको याद है कि उधर हमने प्रोसेसेस कितनी की थी, इस क्वेश्चन में हमने प्रोसेस कितनी याद रखी थी, 4 प्रोसेस थी फ्रेंड्स। कौन सी 4 प्रोसेस थी, सोचो तो। एक पॉइंट था यूनिवर्सल प्रोसेस, याद है आपको, हाँ। दूसरा पॉइंट कौन सा था, ह्यूमन प्रोसेस, वो भी याद है आपको, हाँ। तीसरा पॉइंट क्या था, कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो भी याद है आपको, हाँ। और चौथा पॉइंट क्या था प्रोसेस का फ्रेंड्स, डिसीजन प्रोसेस, वो भी याद है, यस। तो देखिए ये 4 प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस। याद करो 2 एक्टिविटीज थी, कौन सी 2 एक्टिविटीज थी, जी से चालू होती थी फ्रेंड्स, हिंट दे रहा हूं, जी से। एक थी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, दूसरी कौन सी थी, ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। और तीसरा एक और पॉइंट था, 7वां पॉइंट, वो कौन सा था, साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। अभी यूनिवर्सल प्रोसेस में क्या याद रखना था, सभी जगह पे है मैनेजमेंट, सिर्फ धंधे में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं, कहीं कहाँ पे है, और दूसरी जगहों पे, आर्मी में है, एजुकेशन में है, फिर कहाँ पे है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब मैनेजमेंट सभी जगह पे है, यूनिवर्सल है। ह्यूमन मतलब इंसान जहाँ पे है, मैन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, मैन के लिए है, मैन करता है, बाय द मैन फॉर द मैन। कंटिन्यूअस क्यों है, रेगुलर चालू रहेगी, कभी भी एक्टिविटी खत्म नहीं होने वाली, क्यों, क्योंकि इंसान एक बार ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगा, फिर उसको अचीव करेगा, फिर रीडिफाइन करेगा। डिसीजन में क्या लिखना है, एक बार डिसीजन लिया, वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट भी करवाने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। उसके बाद 2 एक्टिविटी, एक गोल ओरिएंटेड, गोल अचीव करने के लिए, दूसरी ग्रुप एक्टिविटी, 2 या उससे ज्यादा इंसान जहां पे भी है वहां पे क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट। और एक और पॉइंट था साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, इसमें क्या लिखोगे, साइंस में क्या लिखोगे, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, आर्ट में क्या लिखोगे, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, और प्रोफेशन में क्या लिखोगे, मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड प्रोफेशनलिज्म लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इतना याद रह जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सोचो, आपको क्या करना है, मस्ट डू फ्रॉम योर एंड। पहले क्या करना है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 टेक्स्ट बुक का प्रॉपरली पढ़ लो। आपको मैंने ग्रुप में तो डाला है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ फिर से एक बार डाल दे रहा हूं इस वीडियो में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ पूरी स्टेट बोर्ड की मिल जाएगी। दूसरा, आपको सभी तीनों डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे जो दी हुई है वो डेफिनेशन याद कर देनी है, और रिटर्न हैंड रिटन नोट्स, तीनों डेफिनेशन आपके लिखे हुई होनी चाहिए आपकी नोट्स में। और तीसरी चीज, आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट के सभी हेड पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं और नोट्स प्रिपेयर करनी है। नोट्स कहां से प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू फाइंड द पीडीएफ एज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक तो टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 डाल रहा हूं, और दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की पीडीएफ भी, ये वाली पीडीएफ भी डाल रहा हूं, जिससे आप आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। और thank you very much to all of you. See you in the next batch. If you have liked the video, please press the like button, and if you have not subscribed to this channel yet, please subscribe to this channel, and you can press the bell icon if you want to get regular notifications from this channel. Thank you very much. This is CA Jekyll Shah saying goodbye to you. Have a great day. Thank you very much.